અષાઢ વદ દશમ શ્રીનાથજીમાં હાંડી ઉત્સવ અને તિલકાયા શ્રી ગોવર્ધનેશજી મહારાજશ્રીનો ઉત્સવ. તો આજે તેનો ભાવ દર્શન કરીએ. વાલા વૈષ્ણવો, આ તિલકાયા શ્રી ગોવર્ધનેશજીનું પ્રાકટ્ય વિક્રમ સંવત 1763 નાથદ્વારામાં થયું અને આપશ્રી એક વિદ્વાન સાહિત્યકાર તેમજ ભાવનાશીલ કલાકાર હતા. વિવિધ કીર્તનોની રચના તેમજ અનેક મનોરથો દ્વારા શ્રી ગોવર્ધનધર પ્રભુને રીઝવતા. આપશ્રીએ પ્રથમ હાંડી ઉત્સવ રોશનીમાં નંદાલયની ભાવનાથી કર્યો. શ્રી પ્રભુને રત્નજડિત મણિમાણેકના હિંડોળામાં ઝુલાવ્યા. રોશનીની ચમકમાં પ્રિય પ્રીતમની રૂપ માધુરી નિહાળી અંતરંગ સેવાનો પ્રારંભ કર્યો. આપશ્રીએ પ્રથમવાર નાથદ્વારામાં અન્નકોટ ઉપર 7 સ્વરૂપને પધરાવ્યા. શ્રી મથુરાનાથજી, શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી, શ્રી દ્વારકાધીશજી, શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી, શ્રી બાલકૃષ્ણજી, શ્રી મદન મોહનજી વગેરે સ્વરૂપો પધાર્યા. 2 મહિના સુધી વિવિધ મનોરથો કર્યા. સંવત 1796 માગશર સુદ નોમના દિવસે સપ્ત સ્વરૂપોત્સવ કર્યો અને 56 ભોગ ધર્યો. આપશ્રીને શ્રીનાથજી બાવા સાનુભવ જતાવતા. વાલા વૈષ્ણવો, આપણે વિસ્તારથી આ પ્રકાર સમજીશું અને તેમજ શ્રીનાથજીના આજના દર્શન, હિંડોળા ભાવના એ બધાનું ભાવ દર્શન કરીશું. કારણ કે હાંડી ઉત્સવનો ખૂબ જ સુંદર ભાવ અહીં દર્શાવ્યો છે અને તિલકાયા શ્રી ગોવર્ધનેશજી મહારાજશ્રીનો દિવ્ય ચરિત્ર પણ સમજાવ્યું છે. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મનાતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અષાઢ વદ દશમ હાંડી ઉત્સવ તિલકાયા શ્રી ગોવર્ધનેશજી મહારાજ શ્રીનો ઉત્સવ. દેહલી વંદનમાલ હાંડી વસ્ત્ર લાલ રંગની મલમલનો સફેદ બુટાના પાલવવાળો અને રૂપેરી જરીની તુઈની કિનારોવાળો ઉપરનો ધર્યો છે. શ્રૃંગાર પચરંગી લહેરિયાની પાગ, લર, અલકાવલી, તિલક, નકવેસર, ચીબુક, કર્ણફૂલ, કંઠસરી, કળા, મુદ્રિકા, અણવટ વીછ્યા અને નગભૂષણ ધર્યા છે. અત્તર પ્રભુ સુખર્થે આજે ખાસ કરીને ચૈત્રી ગુલાબ, રૂહે ગુલાબ, રૂહખસ, સોંધો, મોગરો, માટી, કદમ, કેવડો, પાંદડી અથવા ચંદનનું અત્તર સમર્પવામાં આવે છે. સામગ્રી નિત્યની સામગ્રી ઉપરાંત આજે વિશેષમાં બુંદી, જલેબી અને છાશ વડા આવે છે. આપણે ઋતુ અનુસાર યથા મનોરથ યથાશક્તિ સુંદર સામગ્રી ધરીએ અને શ્રી પ્રભુને લાડ લડાવીએ. કીર્તન મંગલા યહ સુખ દેખોરી તુમ માઈ વરસ ગાઠી गिरिधरन लाल की बहोरी कुशल सो आई आगम के दिननी के लागत उर सुख लहरी उठाई ऐसी बात कहत व्रज सुंदरी अपु अपुने मन भाई फिर हसीले तबलाय कुख की जिही जन्मे जुकनाई तुम्हारे पुत्र भयो नंदरानी सब तन तपत बुझाई नंद कुमार सकल या व्रज में आनंद वेली बढ़ाई श्री विठ्ठल गिरिधर पूरना निधि सबहिन भूखे पाई श्रृंगार नंदराय के नवनिधि आई माथे मुकुट श्रवण मणिकुंडल पीत वसन अरुचारी भुजाई बाजत बीन मृदंग शंख धुनि घसी अरग जा अंग चढ़ाई दधि पीवत और चंदन छिरकत रपटी परत है लेत उठाई अक्षत दूब लिए चढ़ बड़े द्वारन वंदन माल बंधाई सूरदास सब मिले परस्पर दान देत नंद मन न अघाई. આજના શ્રૃંગાર મુકુટ કાચની અને પટુકો. સાજ ગોચારણ લીલાના ચિત્રકામ વાળી પીછવાઈ ધરી છે. ગાદી તકિયા ઉપર સફેદ બિછાવટ કરી છે. ચરણ ચોકી ઉપર લીલી મખમલ મઢેલી છે. વસ્ત્ર લાલ રંગની મલમલના રૂપેરી તુઈલેસની કિનારી વાળા સુથન કાચની અને ગાતીનો પટુકો ધર્યા છે. ઠાડું વસ્ત્ર સફેદ જામદાનીનું ધર્યું છે. શ્રૃંગાર
વનમાલાનો ચરણારવિંદ સુધીનો ભારે શ્રૃંગાર થયો છે. મિલવા, હીરા, મોતી, માણેક, પન્ના તથા જડાવ સોનાના આભરણ ધર્યા છે. શ્રી મસ્તકે જડાવ, હીરા મોતીનો મુકુટ તથા ડાબી બાજુ શિશફૂલ ધર્યું છે. શ્રી કર્ણમાં મયુરાકૃતિ કુંડળ ધર્યા છે. કમલ પુષ્પના કલાત્મક થાગવાળા માલાજી ધર્યા છે. આપણે દર્શન કરીએ. શ્રી હસ્તમાં કમલ છડી, સોનાના વેણુજી તથા 2 વેત્રજી ધર્યા છે. નોંધ: આજે ગોસ્વામી તિલકાય શ્રી ગોવર્ધન શ્રી મહારાજશ્રીનો પ્રાકટ્ય ઉત્સવ છે. કીર્તન રાજભોગ. માઈ રે શ્યામ ઘન તન દામિની, દમકત પિતાંબર ફર હરે, મુક્તા માલ બગ જાલ કહી ન પરત, છવી વિશાલ માનિની કી અરહરે, મોર મુકુટ ઇન્દ્ર ધનુષ સો, સુભગ સોહત મોહત માનિની દ્યુતિ થર હરે, કૃષ્ણ જીવન પ્રભુ પુરંદર કી શોભા, નિધાન મુરલિકા કી ઘોર ઘર હરે. શયન અરે ये झूलत दो लालन, गिरिवरधारी व्रजजन मनहारी, संग राधिका प्यारी, गावत ऊंचे स्वर भारी, किंकिणी नुपुर ध्वनि उपजत न्यारी न्यारी, जोटा देत ललितारी, त्रिविध वहे मलयारी, यह सुख कहत न आवे, रमकत रंग रह्यो भारी, मंद मंद घन गरजेरी, श्रवणन को सुखकारी, ये दो युगल रसिक, इन पर गोविंद बल बलहारी. લાખ તથા કાંચનો હિંડોળો. આજે શ્રીનાથજીની સન્મુખ ડોલતી બારીમાં શ્રી મદન મોહનજી સોનેરી લાખના રંગબેરંગી કાંચ ચડેલા જાણે જડાવના હિંડોળામાં ઝૂલે છે. દિવાળીની જેમ તિબારીમાં રંગબેરંગી કાચની હાંડીમાં રોશની કરવામાં આવે છે. હિંડોળાની ચારે તરફ દર્પણ ગોઠવવામાં આવે છે. રોશનીને કારણે હાંડીઓ સુંદર લાગે છે. ઉત્થાપન ભોગ સરે પછી હાંડીમાં રોશની થાય છે અને ઉત્સવ ભોગ ધરાય છે. શ્રી મદન મોહનજીને વસ્ત્ર અને શ્રૃંગાર શ્રીનાથજી જેવા જ ધર્યા હોય છે. શ્રી લાલન ગોદમાં બિરાજે છે. ભોગ હિંડોળા. આજ લાલત ઝુલત રંગ ભરે હો, મણિ કંચન કો સુંદર હિંડોરો, લટકન મોતી લરે હો, મોર મુકુટ ગુંજા મણિભૂષણ, પીત વસન વન માલ ગરે હો, વિચિત્ર વિહારી જો કે કુંડલ, કપોલ લોલ કામ કો ગર્વ હરે હો. હિંડોળા. હિંડોરે માઈ ઝૂલત ગિરિધર લાલ, સંગ રાજત વૃષભાન નંદિની, અંગ અંગ રૂપ રસાલ, મોર મુકુટ મકરાકૃત કુંડલ, और मुक्तावन माल, रमक रमक झूलत पिय प्यारी, सुख बरखत तेहि काल, हसत परस्पर इत उत चितवत, चंचल नयन विशाल, नंद दास प्रभु की छवि निरखत, विवश भई व्रजबाल. हिंडोळा राग अडानो. झूलन आई है हिंडोरे, मनमोहन रंग बोरे, एक रंग सरस कसुंभी सारी, पहरे कंचू की सौंधे बोरे, पान खात मुस्कात जात और बात कहत पिय प्यारी चित चोरे, कल्याण के प्रभु गिरिधर रिजवश, भय झोटा देत हिंडोरे. हिंडोळा राग अडानो. हिंडोरो री व्रज के आंगन माच्यो, वृंदावन की सघन कुंज में जहाँ तहाँ रंग राज्यो, व्रज की नारी सबे जोरी आई, गावत है सुर साच्यो, रसिक प्रीतम की बानिक निरखत, शंकर तांडव नाच्यो. हिंडोरी री व्रज को के आंगन माच्यो. હવે આપણે વિસ્તારથી આ ઉત્સવનો પ્રકાર સમજીએ. વાલા વૈષ્ણવો, શ્રીનાથજી સેવા રસોદધીમાં ખૂબ જ સુંદર ભાવ દર્શાવવામાં આવ્યો છે અને ખૂબ જ વિસ્તારથી છે. તો ચાલો તેનું ભાવ દર્શન કરીએ. श्रावण कृष्ण दशमी हांडी उत्सव गोस्वामी तिलकाय श्री गोवर्धन श्री महाराज कृत. आज ही आपको प्राकट्य उत्सव होय. ये साहित्य मर्मग्न कलाकार एवं विनोदी तिलकायत हैं. आज दहली बंदरमाल, हांडी, वस्त्र लाल रुपहरी किनारी के, प्याला में कमल पाखड़ी, सुथन, काचनी, पटका, गाती को पाग, मुकुट हीरा, मोती को जड़ाव तथा आभरण, ये सब उत्सव के, पन्ना मोती, माणिक, हीरा आदि के वनमाला को श्रृंगार,
ठाड़े वस्त्र श्वेत जामदानी के बेटा बदली पिछवाई श्रृंगार से लेकर उत्थापन भोग तथा चित्राम की जामे प्रभु कृष्ण बलदेव गाय चराई के पधार रहे हैं। ये बड़ी भावपूर्ण रसमयी पिछवाई है। हिंडोरा कांच को पचिकारी को पन्ना की तरह हरे सफेद लाल की रचको दीवालगिरी चंदवा सुनहरी जरी के चारों तरफ हिंडोला के कांच बड़ी आरसी आवे और कांच की हांडी झाड़ फानूस जामे रोशनी होय उत्थापन भोग सरे बाद रोशनी होय के उत्सव भोग पृथक आवे। जा समय उत्सव भोग सरे ता समय श्रीजी में पिछवाई लाल धरती की तथा रूपहरी फूल झाड़ फानूस रूपहरी किनारे की कलात्मक आवे। अधिक भोग सरे बाद श्रीजी झूले प्रिया प्रीतम सहित यह उत्सव नंदालय के भाव से श्री गोवर्धनेश जी ने कियो। अपने जन्मदिन पर दर्शन खुले पर हिंडोरा के सन्मुख कांच की मृदंग तथा फानूस वगैरह चार चार आवे। आज अंतरंग भीतर के मुखिया भीतरिया चवर वगैरह आदि नहीं आवे। रंग बिरंगी रोशनी होय और कांचन की तथा हीरा पन्ना की शोभा बढ़ावे। सेवा नित्य क्रमवत ही होय। आज झूला में 8 कीर्तन होय तथा भोग आवे। तब गदाधर जी को हिंडोरा गवे और पद भी गवे। उत्सव नायक श्री तिलकाय श्री गोवर्धनेश जी को परिचय। आप गोस्वामी तिलकाय श्री विठलेश राय जी के प्रथम पुत्र विक्रम 1763 में नाथद्वारा में प्रगटे। आप सुंदर सुडौल अच्छे साहित्यिक कलाकार अनेक भाव भावना करी के प्रभु श्री गोवर्धन धरण को अनेक मनोरथन सो रिझावते। प्रथम हांडी उत्सव रोशनी में नंदालय में करी। रत्न जड़ित मणिमाणिक के हिंडोला में झुलाई और रोशनी की चमक में प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी निहार अंतरंग सेवा को प्रारंभ कियो। आपने ही सर्वप्रथम मेद पाठ में 7 स्वरूप पधराए और नाथद्वारा नगर के विकास में योगदान दियो। अन्नकूट पर समस्त स्वरूपन को पधराई के 2 महीना तक विविध मनोरथ कियो। आपके कोई संतान न भई, अतः छोटे भाई पर अधिक स्नेह राखी आपके बाद तिलकायत पदासीन भय। वे गोविंद जी नाम सु प्रथम तिलकायत भय। आपने तिलकायत पदासीन होइवे पर अनेक मनोरथन की अनेक पद रचना करी तथा श्रीनाथ जी के यहाँ पर पद्धति प्रकार आपने चालू करी। यहाँ कुछ उनके रचित पद उद्धृत किए जाएं। उष्णकाल को पद राग सारंग। उसी न महल भवन छायो सुबनीता में बैठे राधा रमन एरी अंश भुजन मेली। मृगमद घसी अंग लगाए कपूर जल सो चुचाई अली बूंदे शीत लगत हो करत सुख केली। गावत सारंग सरस कोकिला सुनत होत विवश चलत अचल या चल पुलकित द्रुम वेली। गोवर्धनेश हित विलसत ग्रीष्म ऋतु अति निवास ललितादिक निरख नयन पावत रस झेली। वर्षा में झूला वर्णन राग मल्हार। प्यारो प्यारी झूलत सुरंग हिंडोरे दुह और सखी झुलावत गावत सुर मंडल कल घोरे। देखत वने कहत नहीं आवे शोभा सिंधु हिलोरे। जगमगात दामिनी ज्यों भामिनी मृदु मुस्कन चित चोरे। सजन नील घन तन गिरधारी शोभा सिंधु जकोरे। युगल किशोर नवर बानिक पर गोवर्धनेश तृण तोरे। यह पद सर्वत्र 56 भोग में आप द्वारा रचित गायो जाए। बैठी गोप कुंवर की पाती ललित तिबारी पट्टा रतनन के झारी जल कंचन की भांति। मानिक थाल विशाल धरे बहु बेला बेली नाना भांति। शटरस व्यंजन धरे तिनके मधि में देखत जिनके नैन सिरात। परसत करत रोहनी फिर फिर अति आनंद मांझहियो सिरात। लपटत झपटत सखन संग मिली देखी यशोमति मन मुस्कात। अष्ट सिद्धि नवनीति दासी तहा उठावत जूठन मन इतरात। देखत यह सुख सुरपुरवासी भयेन व्रज जन आंख चुचात। जो सुख संपत्ति सब व्रज छिन छिन जन की पल पल वे गिनत न जात। गोवर्धनेश गिरिधर प्रसाद को ब्रह्मादिक की मति ललचात। तो या प्रकार आपने अनेक पद रचना करी प्रभु को रिझाए आपको श्रीनाथ जी से अनुभव जतावते। एक समय आपके छोटे भाई श्री गोविंद जी जिनकी अवस्था छोटी हती
निपट छोटी अवस्था में पिताश्री लीला प्रवेश कर गए। तब सारो भार पालवे को आप पर आयो। उष्णकाल के दिन हते। आपको श्रीनाथ जी के शैया मंदिर में ठंडी हवा से नींद आई गई और श्री गोवर्धनेश तथा श्रीनाथ जी के सभी सेवक वर्ग मंदिर बंद कर नित्य क्रम सेवा उपरांत ताला मंगल बाद घर चले गए। आचार्य श्री गोवर्धनेश जी हूँ बैठक में पधारे तब भोजन को समय भयो। तब बाबा को आरोग्य बुलाई गई। बाबा को कहूँ पता न चलवे पर बहुत चिंता भई। सारे नगर में हल्ला भयो। या चिंता में ही गोस्वामी तिलकाया श्री गोवर्धनेश जी को तंद्रा झपकी आई और झपकी में ऐसो मालूम पड़ियो कि श्री गोवर्धन श्रीनाथ जी बैठक में पधार रहे हैं। गुलाबी पर्दनी लटपटी पाग कर में कमल और आज्ञा करे हैं। बाबा मेरे पास खेल रही है, चिंता मती करियो। आचार्य श्री को प्रसन्नता भई। जनाने में तथा परिकर को भगवद आज्ञा कही सुनाई। यथा समय शंखनाद भये मंदिर खुलियो। बाबा को देखे अहो भाग्य माने और भाग्य की सराहना करी। यहाँ कथानक ऐसो भी है कि बाबा सु लड़े पर यह प्रामाणिक नहीं। आपके प्राकट्य पौष कृष्ण 11 के पूरे दिन बाल लीला के पद गवे। ये तिलकायत बाल भाव भावित माने गए हैं। गोवर्धनेश जी को झूला को पद प्यारे प्यारी झूले सुरंग हिंडोरे धोर सखी झुलावत गावत सुर मंडल कल घोरे। जुगल किशोर नवल बानिक पर गोवर्धनेश तृण तोरे। आपने तिलकायत पदासीन होइवे पे सप्त स्वरूपोत्सव सर्वप्रथम कियो। 1796 मृगसर शुक्ल 9 को नाथद्वारा में 7 स्वरूप मथुराधीश जी, विठलनाथ जी, द्वारकानाथ जी, गोकुलनाथ जी, गोकुल चंद्रमा जी, मदन मोहन जी, बालकृष्ण जी आदि पधारे। ताको वर्णन प्रवीण कवि ने कियो है तथा आपने 56 भोग धरे। उपरोक्त पद रचना करी समाज कियो तासो आज तक 56 भोग में सर्वत्र यह पद गायो है। मृगसर शुक्ल अष्टमी श्रृंगार पद तथा भावना एटला 7 स्वरूपोत्सव जे कर्यो तेनी भावना। दहली वंदनमाल पिछवाई खंड कांच के भरत माटुकन को गमलान के में फूल निकसे। लाल धरती के ठाडे वस्त्र हरे वस्त्र छोटे बूटा के लाल खीन खाप के कुले हीरा की जोड़ चमक को वनमाला को उत्सव को श्रृंगार कुंडल शीश फूल जड़ाऊ सुथन मोजा खीन खाप के मंगल में चहुयुग दे वेद वचन प्रतिपालियो श्रृंगार होते हैं। अन्य वधाई तथा अब के द्विजवर है श्रृंगार सन्मुन जय जय श्री वल्लभ राजकुमार। 56 भोग आरोगत में श्री वृषभान सदन भोजन को। तीसरा बैठी गोप कुंवर की पात आजू गोपाल पाहुने आए और न्योते के पंगत के पद गाए जाए। सन्मुख में विहरत सातो रूप धरे उथापन में नातर लीला होती जूनी। सब मिल गावो मंगल गीत बधाई आरती में हो चरनाथ पत्र की छैया। शयन में आज धन भाग हमारे। अन्नकूट उत्सव पर 7 स्वरूप पधारे बिराजे। ताको वर्णन प्रवीण कवि ने सुंदर ढंग से कियो तथा 7 स्वरूप पधराइवे को हो 56 भोग हो निम्न कवित्व सवैया में कीनो है। એટલે 7 સ્વરૂપ પધાર્યા આ કવિતામાં ખૂબ જ સુંદર વર્ણન છે તે જોઈએ। दोहा श्री वल्लभ की अष्टनिधि जब मिली बैठी आनी तब की छवि लिखियत अवे अथ इति लो जानी। कवि आगे नवनीत पिय बाई और मथुरेश आगे विठलेश बन्यो ब्योत छवि भारी को। दाहिने द्वारकेश गोकुलेश आगे तिही दाहिने स्वरूप मन मोहन बिहारी को। गोकुल के चंद मथुरेश जू के बाई और आछो पायो दरस प्रवीण सुखकारी को। मानो चंद वृंदन में चंद्रमा बिराजे तैसो राजे सुख कंद मुख चंद गिरधारी को। श्रृंगार वर्णन अन्नकूट को। कुलही जरी सिकी सेत भूषण समेत छवि देत हरि लेत मन मोहन फुलवारी को। तापे लसे तुर्रा गोकर्ण के समान सोहे सेत जारी बागो अति प्यारो प्राण प्यारी को। वाम भुज धरे पीत वसन प्रवीण भयो ज्यों ज्यों होत जोत भूषण उजारी को। मानो चंद वृंदन में चंद्रमा बिराजे तैसो राजे सुख कंद मुख चंद गिरधारी को। रतन खचित चोखटा है चटकीलो जगमगात उजासतियों चढ़ाऊ पिछवारी को।
सेत जरी बाग सेत कुल्हेही जरी को तुर्रा गोकर्ण समता में खुलिवो किनारी को। सूथन है लाल रंग भूषण अमित अंग बन्यो दिन दुल्हे प्यारो सुकुमारी को। मानो चंद वृंदन में चंद्रमा बिराजे तैसे राजे सुख कंद मुख कंद गिरधारी को। आठों स्वरूपन को 100 श्रृंगार आठों करत आहार अन्नकूट भोग भारी को। रूप को निकेत सचेन बेनत को देत आठो। मनहर लेत वल्लभी सृष्टि सारी को। ता समय को उत्साह बखानी को प्रवीण सके बलिहो कीनी कुवाग देवता विचारी को। मानो चंद वृंदन में चंद्रमा बिराजे जैसे राजे सुख कंद मुख चंद गिरधारी को। सात उधर घर निके गुसाई बहु बेटी अवलोकत स्वरूप प्यारो रूप मतवारी को। मंदिर में आनंद महोदधि उमड़ी रहियो सुरहु सराहे बड़भाग नर नारी को। पुष्टि के प्रवीण जन पावत प्रमोद पुरो निरख विलास यह विपिन विहारी को। मानो चंद वृंदन में चंद्रमा बिराजे तैसे राजे मुख कंद मुख चंद्र गिरधारी को। मुरज रसाल बाजे ताल तिहु काल गावे सुजस विलास देव इंद्र मदहारी को। जय जय बोले करे भजन कलोले पावे दरस अमोले रोले रोल नर नारी को। गिरिवर धर लाल जो उतारे आरती को देत न्योछावर फुल मन कर तारी को। मानो चंद वृंदन में चंद्रमा बिराजे तैसे राजे सुख कंद मुख चंद गिरधारी को। धन्य यह लीला धन्य गुसाई ये बहु बेटी करे यह अनुभव ब्रज की जिवारी को। दूरजन साधु महाराव धन धन खर्च्यो उन वैभव अपार धन राजधानी सारी को। धन्य है प्रवीण गौ ग्वाल जु को देखत है होत है उदोत हरि रूप उजियारी को। मानो चंद वृंदन में चंद्रमा बिराजे तैसे राजे सुख कंद मुख चंद गिरधारी को। आनंद अखुट लगे लूटन प्रवीण जन ताते अनकुट लुटायो सोज सब भारी को। वाटी वाटी दिनो सब सबन ने लीनो यह महाप्रसाद दुख मेटत दुखारी को। सब हंसे खुले वेरियो प्रवीण मन मोद लखी लखी लाल की चितोनी छाकवारी को। मानो चंद वृंदन में चंद्रमा बिराजे तैसे राजे सुख कंद मुख चंद गिरधारी को। वृंदावन इंदु को वल्लभ मुखारविंद लीनो विप्रवेश भजत न उपकारी को। तिनके सदन मधराजे विठलेश जू दो है स्वरूप मूल रूप अवतारी को। तिनकी कृपा ते ऐसे अन्नकूट उत्सव में दरस प्रवीण पायो विपिन विहारी को। मानो चंद वृंदन में चंद्रमा बिराजे तैसे राजे सुख कंद मुख चंद गिरधारी को। 1700 संवत 96 के कार्तिक में उत्सव एक ही रूप 14 दिवारी को। दूसरे दिन अनुभव रविवार बासर में भयो अन्नकूट भोग सोज सब न्यारी को। उमग्यो महोदधि उत्साह सो प्रवीण मन हेरत विलास हास पूरन हमारी को। मानो चंद वृंदन में चंद्रमा बिराजे तैसे राजे मुखकंद मुख चंद गिरधारी को। उत्सव 56 भोग में 7 स्वरूप को वर्णन। सवैया केसरैया कुलही निरखे दुलहिन के भाव नए नए न्यारे। वागो बिराजत लाल जरी को फव्यो पटुका मद में न कोटारे। भाव सो जो नित सोहत तैसे बिराजत है जो प्रवीण के प्यारे। लाल गोवर्धन जो बड़ भाग के लाल गोवर्धन धारी पधारे। मंदिर ते ही मंदिर लो छिड़काव किए हैं गुनिन सवारे। मंगल गीत सुहागिनी गावत विप्रन वेद मंत्र के उच्चारे। चहुमोलक अंबर सोजु बनी वर पालकी बैठे प्रवीण के प्यारे। लाल गोवर्धन जो बड़ भाग के मंदिर श्री मथुरेश पधारे। नीको बन्यो चकडोल अमोलिक भूषण तामे लगे बहुबारे। उत्सव के पद गावत आवत गायक वृंद महावनवारे।
वीरी आरोगत आनंद सो सब भक्त न देखे प्रवीण के प्यारे। लाल गोवर्धन जो बड़ भाग के मंदिर श्री विठलेश पधारे। भूषण अंबर आछे अनुपम प्रीत के रीत रंगनी सवारे। भोग अनेक अरोग अरोगी प्रफुल्लित कीने है चाहन हारे। मनोरथ के रथ ऊपर बैठ के बड़ी छवि देखत प्रवीण के प्यारे। लाल गोवर्धन जो बड़ भाग के मानी श्री द्वारका नाथ पधारे। बालक वृंद किशोरन मौन को काम करोर विसारे। आरती वारी विलोकन की तब कीनी कृपा जो वियोग विडारे। अंबर लाल की रतन पाल की माही बिराजे प्रवीण के प्यारे। लाल गोवर्धन जो बड़ भाग के मंदिर श्री गोकुल नाथ पधारे। जैसे करे सब लोग लुगाई न बाजे विचित्र नवीन नगारे। घोर बिराजत मदला अरु पावड़े मार्ग झांझ सितारे। मंगल गीतन गावत आवत पालकी बैठे प्रवीण पियारे। लाल गोवर्धन जो बड़ भाग के भवन श्री गोकुल चंद पधारे। भाव गावत ढोल वधु गुजराती नकी कलकंठ के गर्व सुधारे। बांधी चहुदीश वंदन माल और चित्रित कीने है चारु दुआरे। पालकी ज्योति सुजग मग होती तामे बिराजे प्रवीण के प्यारे। लाल गोवर्धन जो बड़ भाग के मनमथ मोहन भवन पधारे। श्री मथुरेश श्री गोकुल चंद्रमा बैठे बराबरी रूप उजारे। श्री विठल मनमथ मोहन वाम दिशा में बिराजत है छवि धारे। दाहिने गोकुल नाथ बिराजन बीच में श्री नवनीत पियारे। लाल गोवर्धन जो बड़ भाग के मंदिर सात स्वरूप पधारे। बहुभातन के पकवान करे अरु व्यंजन कीने सबे विधि सारे। भात दे आदि सवारे हैं भोजन भोग धरे सब भांति के न्यारे। द्वार तिवार न्योछावर दे न्योछावर दे गुण गायक जो थकिए है सुखारे। लाल गोवर्धन जो बड़ भाग के मंदिर सात स्वरूप पधारे। जीवन के मन पुष्टि के मोद को बाड़ियो पयो निधि ताप विवारे। ताछिन की छवि को छिति में कही कौन सके कवि लोग विचारे। लाल गोवर्धन जी बड़ भाग के आनंद अनुराग उगारे। लीला अनुप करी व्रज भूप सुभवन में सात स्वरूप पधारे। अंबर भूषण शोभा सुगंध भले विधि प्राण प्रसून सवारे। मार्ग सिर सुमास सुखाकर उजरी आठम मंगलवारे। 1700 अरु 96 सम्मत तास में आनंद उत्सव भारे। लाल गोवर्धन जो बड़ भाग के मंदिर सात स्वरूप पधारे। आज के दिन राजभोग में बधाई न गाय के ये मल्हार गाई जाए। पदन में श्री गोवर्धन जी के स्वरूप के स्वभाव को संकेत है। श्री वृंदावन भुवि कुंदादिक युत मंदा नील रुचिरे। फरी एक बार। श्री वृंदावन भुवि कुंदादिक युत मंदा नील रुचिरे। पुलिनोदित नवनली नोदर मिलदली नोदित रसगाने। कर्णादि कपूट चरणाम्बुज ध्वनि चारु हरिणाक्षी वलिते। निज रसमयता प्रकटन प्रसरित प्रकटित रास विहारे। गिरधारण रतिहारण कारण मम रति रस्तो सदारे। बधाई न हो कि ये पद राजभोग सन्मुख गावे को आशय यह है कि आचार्य श्री गोवर्धन श्री साहित्यिक एवं भाव भावित आचार्य है। अतः वृंदावन रसरास रसिक शिरोमणि की रसलीला जो हांडी उत्सव है वाको प्रभु सेवा में रस कलात्मकता सु निहित कियो ताको यह वर्णन या प्रकार है। वृंदावन की पावन पुनित कुंद आदि पुष्पन में संवेष्टित तथा उनके स्पर्श सो शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है। ता वृंदावन के समीप ही यमुना तट में विविध प्रकार के कमल विकसित हो रहे हैं। उनमें भ्रमर गुंजार कर रहे हैं जो श्रवणन को आनंद देने वाले हैं। तहाँ चरणन की नुपुर धुनि मानो व्रजललना हरिणाक्षी उनकी गति से रस प्रकट करी रास विहार में पधार रही है
और श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी में उनकी प्रीति सदा बनी रहे। यहाँ मेघपाट ही वृंदावन तथा यमुना स्वरूपा बना सरु उनके तट पे कमल उनके भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। यह भावना सो आचार्य रसमय होय सखी भाव सो रास में सम्मिलित होय विहार करे। शयन में को भाव शयन में भी रस भरियो पद होय है। जो कांता भाव भावित सरसरती प्रीता नायिका स्वरूप श्री गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन श्री महाराज अपनी प्रार्थना के साथ श्री विठल जी की वाणी में अपनो सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं। झूलो तो सूरत हिंडोरे झूलाऊं, मरुवे मयार करो हित चित के तन मन खंभ बनाऊं। सुध पटुली बुद्धि डांडी बेलन नेह बिछो न बिछाऊं। अति होशेर धरो रुचि कलसा प्रतिध्वजा फहराऊं। गरजन कोह कहिल गमिलवे की प्रेम नीर बरखाऊं। श्री विठ्ठल गिरिधरन झुलाऊं जो एकले करी पाऊं। तामे मरुआ खम डांडी पटुली वेलन कलश ध्वजा आदि होने चाहिए। तो ताको वर्णन या प्रकार है। हित और चित्त के दो मयार, ऊपर को और खंभा तन मन के, बार बार सुधी करनी पटुली, बुद्धि चतुराई वेही चार डांडी, वामे नेह रूपी वस्त्र बिछाए पुनः पुनः सुधी के कलश चढ़ाऊं। प्रेम रूपी ध्वजा फहराऊं। ये झूला जब सावन को होए तो मेघमंडल आने ही चाहिए। कहे हैं गरजन तो हिलन प्रीति की। एकांत में बैठी के कोई न जाने, केवल वही जाने। यह भाव सो आचार्य जी को यह पद होए है। पूरित हो मन कान सबे यह कीर्ति वेद पुराण जारी। हो शरणागत के प्रतिपाल दयाल कृपाल हो आनंदकारी। मंगल रूप प्रवीण महाअब कीजिए मंगल कुंज बिहारी। लाल गोवर्धन लाल गोविंद के दीजिए लाल गोवर्धन धारी। आ रीते અષાઢ વદ દશમની ભાવના અહીં વિરમે છે। વાલા વૈષ્ણવો, અહીં હિંડોળાનો ખૂબ જ સુંદર ભાવ દર્શાવ્યો છે। આપણે ક્રિયાવત હિંડોળા ઝુલાવીએ તે તો ભલે ઝુલાવીએ, પરંતુ આ રીતે આપણા હિત ચિત્તમાં પ્રભુ બિરાજે, આપણા હૃદયમાં બિરાજે અને એટલું હૃદય વિશુદ્ધ રાખીએ કે તેમાં પ્રભુ ઝૂલે, તે ભાવ અહીં દર્શાવ્યો છે કે સતત પ્રભુમાં ચિત્ત પરોવાયેલું રહે। ચેતસ્તત પ્રવણમ સેવા, એટલે કાર્ય ગમે તે કરતા હોય પરંતુ આપણું મન તો પ્રભુના ચરણારવિંદમાં ચોટેલું રહેવું જોઈએ, એ અહીં ભાવ દર્શાવ્યો છે। બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ की जय। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ।